Yes, smiley face. Smiley face. Thank you. Yes. Very good. One more. It falls on a Sunday. We have gathered here today to celebrate this wonderful occasion together. Today is a day when we celebrate the strength, resilience, and achievements of women across every field of life. They say, behind every successful man, there is a woman. But today, we proudly say, women are not behind anyone, they are leading from the front. Here in SEEBS, we witness this every single day. Women across various units are leading teams, managing businesses, meeting deadlines, innovating and contributing immensely to the growth of this vibrant ecosystem. And of course, women have a special superpower. Women don't just multitask. They perform what I like to call parallel processing, something even the best computers are still trying to master. Whether it is handling meetings, deadlines, families, festivals, and still managing to ask everyone around them, did you eat khana khaya? That truly is leadership of the highest order. Friends, today we are truly honored to have 4 distinguished guests with us who have graciously accepted our invitation to be part of this celebration. Their presence makes this occasion even more special, and we extend our heartfelt welcome to each one of them. We are privileged to have Dr. Chanda Nathani, who served with great distinction as a district judge. Through her years in judiciary, she has upheld the values of justice, integrity, and fairness, and her journey stands as an inspiring example of dedication and strength in a field that demands both wisdom and courage. We are also honored to welcome Mrs. Seema Kapoor, an accomplished film writer and producer-director whose creative journey in cinema and storytelling reflects both artistic excellence and strong leadership. We are delighted to have with us Ms. Sana Kedar Shinde, a talented Marathi film actress and film producer who represents the new generation of dynamic women contributing to the world of cinema with passion and creativity. And we are equally honored to welcome Ms. Shagufta Beg, a remarkable voice and dubbing artist whose voice has brought life and emotion to countless characters across screens and languages. Each of these remarkable women, through their own journeys, reminds us that talent, determination, and courage can open new paths and inspire countless others. To begin this auspicious celebration, we will now proceed with the ceremonial lighting of the lamp, symbolizing knowledge, positivity, and the triumph of light over darkness. May I kindly request our distinguished guests to please come forward and grace this occasion by lighting the ceremonial lamp. Beautiful Saraswati Vandana, invoking the blessings of Goddesses Saraswati, the goddesses of knowledge, wisdom, and arts. पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
माइक दीजिए ना। यहाँ से हाँ, ये जाइए पाटिल माइक। असिस्टेंट कमिश्नर मैडम जी, मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए मेरे सामने बैठे हैं आज के हमारे अधिकारीगण। धन्यवाद जेडीसी सर, श्री मयूर मानकर सर जी, धन्यवाद डीडीसी सर, श्री डॉक्टर संदीप भोसले जी, और मेरे और अधिकारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पलाश सर बैठे हुए हैं, रमेश सर बैठे हुए हैं, राहुल सर बैठे हुए हैं और सुदर्शन सर बैठे हुए हैं, और हमारी मैडम बैठी हुई है ब्रिजिट मैडम और दिवांशी मैडम, और यहाँ पर मेरी सबसे ब्यूटीफुल जो हमारी मेहमान है, आप सब हमारे आज की मेहमान हैं। आप सबके लिए ये उत्सव हमने यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सीट से इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता मैडम ने हमारे सभी अतिथियों का परिचय करा दिया, और यहाँ पर विकास आयुक्त कार्यालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से, आप सब लोग इनसे मिल चुके हैं, लेकिन आपको एक बताना चाहूँगी कि हमारे गेस्ट लिस्ट में एक और विशिष्ट अतिथि थी, प्लेबैक सिंगर भजन गायिका श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी। हमें बहुत खुशी थी, वो आ रही थी, लेकिन अचानक से उनका कुछ व्यक्तिगत कारण हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई, और उन्होंने आप सबके सामने कहा कि मुझे दुख है कि मुझे इतनी अच्छी अच्छी महिलाओं से मिलने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। तो आज उनको याद करते हुए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 2026 की थीम है गिव टू गेन, यानी अधिकार, न्याय, कार्रवाई। ये है सभी महिलाओं के लिए और सभी लड़कियों के लिए, हम सब के लिए है। हम जब किसी को देते हैं तब हमें मिलता है, यही हमें बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2000 की थीम अधिकार और न्याय के साथ साथ हर महिला और बालिका के सशक्तिकरण के लिए वास्तविक कार्रवाई, जो सिर्फ आज के दिन नहीं है, हमें जीवन भर इसको पालन करना है। दुनिया भर में गिव टू गेन अभियान जेंडर इक्वालिटी के लिए आपसी सहयोग और उदारता के महत्व पर जोर देता है। भारत अब महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिला नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता दे रहा है। यह बात हम सभी जानते हैं कि आज की महिलाएं अर्थव्यवस्था और समाज की असली ताकत हैं, असली शक्ति हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत के लोकतंत्र में महिलाओं को न केवल बराबरी का दर्जा मिले, बल्कि शासन प्रणाली में उनकी हिस्सेदारी भी समान रूप से हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न पहलें महिला सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम निर्माण कर रही है। स्वयं सहायता समूह, एंटरप्रेन्योर्स स्कीम और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उद्यम निर्माण की संभावना का विस्तार कर रहे हैं, जो हमारे सीप सेस के यूनिटों की महिलाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसका 100% अनुपालन हो रहा है। अब आते हैं हम आज के मुख्य कार्यक्रम पर। हमारे सामने यहाँ बैठी हैं डॉक्टर चंदा नाथानी जी। डॉक्टर चंदा नाथानी जी को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की पहली महिला वकील के रूप में जाना जाता है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का वो जिला है जो आदिवासी बहुल जिला है, और यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण खतरनाक जिला माना जाता है। आप लोगों ने अखबारों में देखा ही सुना होगा, और काफी समय तक ये पिछड़ा इलाका रहा है। लेकिन ऐसे जिले में भी शिक्षा की रोशनी में एक नाम चमका, डॉक्टर चंदा नाथानी। गढ़चिरौली जिले की वो पहली महिला वकील है। उन्होंने अपने कार्यों से, हिम्मत से सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है। जब उन्होंने वकालत के क्षेत्र में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी। उनका रास्ता मुश्किलों भरा था और सफर चुनौतियों से। जरूरत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। यही सोच सोचकर चंदा जी आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चंदा नाथानी जी अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सामाजिक प्रतिबद्धता के
बल पर आगे बढ़ती गई। उन्होंने एक सफल एडवोकेट के रूप में अपनी पहचान बनाई, समाज में महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आपने 30 वर्षों तक न्यायाधीश पद पर कार्य किया है। ग्राहक तकरार निवारण समिति निहाल नागपुर में अध्यक्ष पद पर 2 साल रही हैं। तकरार निवारण समिति गोंडवाना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर 3 साल तक काम किया है। वैसे चंदा जी के कामों की लिस्ट बहुत बड़ी है और इतना मतलब वो समाज के लिए काम करती है और उन्होंने एक कवि का हृदय भी पाया हुआ है। आपको हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और मारवाड़ी में कविताएं भी लिखने का शौक है। सम्रांगिनी और नारायण मंगल करे नाम से आपकी 2 किताबें भी छप चुकी हैं। डॉक्टर चंदा नाथानी जी इस बात का उदाहरण है कि एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को दिशा देती है और उसकी दशा बदल भी सकती है। तो आज मैं आमंत्रित करनी चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर चंदा नाथानी जी को। वे आए और बताएं कि शिक्षा कैसे एक स्त्री को जीवन की राह दिखाती है। आपका स्वागत है। मेरा भी कोई शायद मैं पूरी दिख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इधर हो जाती हूँ थोड़ी सी। तो गैलेक्सी ऑन डायस एंड टुडे इट इज रियली गॅलेक्सी, तारांगण, अगदी खरोखरीचे तारे आज आपल्या व्यासपीठावर विराजमान आहेत। सो गैलेक्सी ऑन डायस एंड सभी अधिकारीगण, मैं कहूँगी सद्भावी सत्पुरुष अधिकारीगण, मेरे भाई और सभी साहसी, सुंदर, कर्तव्यगार और काफ़ी कुछ विशेषण है, ऐसी सारी उत्साही सारी महिलाएं, लड़कियां, सभी को मेरा सादर नमन। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता दिया, मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ। सबसे पहले एक छोटे से गांव में मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी। छोटा गांव तब 1975 में वो गांव में कॉलेज भी एक ही कॉलेज था जो भी सिर्फ आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज नहीं था। कोई इलाज नहीं था, मुझे कॉमर्स लिया मैंने। तब कॉमर्स लेना लड़की ने एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी, क्योंकि व्यापार तो सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती व्यापार कोई, और वो वाणिज्य जो है वो लड़कियों का नहीं। मैंने फिर भी चुना तो पूरे कॉलेज में मैं अकेली लड़की फैकल्टी में थी। पूरे कॉमर्स फैकल्टी में 5 साल 1 साल एक लड़की आई थी, मैं पूरे फैकल्टी में अकेली लड़की रही। वो फैकल्टी से चालू हुआ, फिर आगे मैंने नागपुर भेजा मुझे और मैंने वकालत की, पढ़ाई की। वापस जब आई मैं गांव में, कोई भी नहीं, बस एडवोकेट सभी, मेल कोई फीमेल नहीं, कोई लड़की नहीं। मैंने वकालत चालू की, 7 साल तक वकालत की, एक भी लड़की नहीं थी मेरे साथ में। पूरे 7 साल मैंने अकेली ने काम किया। बहुत सारे चैलेंजेस आए, इतने अजीब के आपको बताऊँ तो बहुत ही बड़ी बात लगेगी आपको, इतने बहुत सारे। एक टॉयलेट तक नहीं था, क्योंकि कोई लड़की क्यों आएगी, ऐसा उनको लगता था कि लेडीज के लिए एक टॉयलेट भी नहीं था। वो सब वो जो 2-4 घर छोड़कर 8 घर छोड़कर वहाँ पे जाकर हम लोगों व्यवस्था हमारी खुद की हमने की और इस तरह से आगे बढ़े। अगर रुक जाते तो शायद आपसे ना मिल पाते और आप इतने अच्छे लोगों के साथ तो ये मेरे माँ बाप ने मुझे काफ़ी पढ़ाई का ये दिया, आगे बढ़ी। और सोचा जाए तो फर्स्ट कपल इन महाराष्ट्र, जिसका हमारा इनका बुक में भी नाम आया हुआ है। तो ऐसा वो जर्नी चालू हुआ, काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन था, डिटरमाइंड थी। माताजी पिताजी का आशीर्वाद, गुरु सभी तरफ से मुझे अच्छा था। गढ़चिरौली में मैंने काफ़ी सोशल वर्क जब किया, तब डॉक्टर रानी बन थी, उनका भी काफ़ी उनके साथ मैंने काम किया।
चलता रहा। फिर जब मैंने सर्विस में आई तो सब महिलाओं की केसेस मेरे पास आती थी। इतने अजीब अजीब केसेस, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, मतलब इतनी तरह तरह के रहते थे। कोई डाइवोर्स के होती, कोई रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के, कोई अलग अलग है कस्टडी के, बच्चों के कस्टडी के मैटर्स रहते थे। बहुत तरह तरह के मैटर्स ऐसे चलते थे। फिर जब मैं मुंबई में आई और सबसे पहले जब पोक्सो एक्ट आया 2013 में, तब मुझे पोक्सो काम पहले दिया गया। तब मेरा दैट टाइम देयर वाज नो मिस डिटेल, ये भी नहीं थे, रूल्स भी बनाए हुए नहीं थे, बस एक्ट आ गया था और शुरुआत करना था। अब इतनी छोटी बच्चियां, कैसे उनका किया जाए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ नहीं था उस टाइम पे। अब तो अलग कोर्ट्स है, अलग पूरी बिल्डिंग है, सब उनका बिठाने की व्यवस्था अलग है, सब कुछ है। तो मैंने अपना क्या किया, जो बड़ा कोर्ट रूम था, कोर्ट रूम में ऐसे मेरा स्टेनो नीचे टेबल लगवा लिया, टेबल लाल के बाजू में बैठ जाती थी मैं। और हम कोट वगैरह नहीं पहनते हैं उस टाइम पे, क्योंकि लड़कियां घबरा ना जाए कोट वगैरह देख के। मामूली से कलर क्लॉथ्स और वाइट क्लॉथ्स में भी, वो क्लॉथ्स में हमने बाजू में बैठना है उनको सिर्फ फिर मैं चॉकलेट देती थी, कभी बड़ा पाव बुलाती थी और उनको घूमती थी। दरवाजा सामने से बंद करते हुए लड़कियों को घूमने देती थी। अब 2 साल की 4 साल की लड़की बताएगी कैसे, जब तक मैं उसको ये ना करूँ। तो धीरे धीरे फिर वो घूमती थी, फिर इधर की उधर की बातें करते थे, कभी चॉकलेट देते थे कुछ, फिर उसको बोलते थी कि भाई आ जा, बैठ गोदी में बिठाती थी और पूछती थी क्या हुआ, सिर्फ तो बता। और स्टेनो को सिर्फ ऐसा मैंने बोला कि मैंने बोला वो लिख लेना तूने, क्योंकि अगर मैं कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करूँ कि एक बार इंग्लिश में और एक बार मराठी में मुझे बोलना है, तो वो तो पूरी कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इस तरह से फिर वो बताती थी इतनी सारी बात, इतनी सारे कैसी केसेस है। आप अभी मैडम ने बोला कि ये बातें मत कीजिए, क्योंकि बहुत हमको सूरज जी ने कहा कि बहुत हमको डिप्रेसिंग लगता है। लेकिन जो है ये वास्तविकता है, और वास्तविकता से जो है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, ऐसा कुछ होता है, लड़कियों पर भी होता है, बड़ियों पर, बड़े इस पे भी आता है, लोग आगे नहीं आते हैं। अब तो काफी शुरू हुआ है, बढ़ते आगे। क्यों? समाज हमको क्या कहेगा, मेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी, मेरे इसका कैसे होगा, मेरा उसका कैसे होगा, मेरी माँ को कोई बाहर जाएगी तो क्या बोलेगा, पिताजी को क्या बोलेगा। अरे भाई सब ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं सोच सकते, अगर तुमने यहाँ रोका है, नहीं रोका, तो आगे कितने घर बर्बाद कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं करना। और तुम जो है ऐसा जब कभी कुछ होता है, तो that I say that it is not only against you, you are representing totally a womanhood, totally सभी औरतों का तुम रिप्रेजेंटेशन करते हो। तो ऐसी बात जब होती है, तो कोई भी बात कभी भी कहीं पर भी छुपाने की कोशिश ना हो, ये एक ये होता है। मुझे लगता है समय ज़्यादा ले रही हूँ क्या, तो ये थोड़ी सी बात है। इस बात से हम बाहर आया, और हम जो है यहाँ पर आई हुई एक भी ऐसी स्त्री नहीं है कि किसी ने स्ट्रगल नहीं किया हो। सभी ने एक संघर्ष किया है, सभी ने सब संघर्ष कर तक यहाँ तक पहुँचती है। और बिना संघर्ष कुछ मिलता नहीं, और मिला अगर बिना संघर्ष कुछ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई आपको किसी को भी ऐसे कोई भाग्यवश सब कुछ आप यहाँ आ जाइए तो भाग्यवश नहीं मिला हुआ है, सभी ने संघर्ष किया हुआ है। तो संघर्ष करना, संघर्ष से ना डरना, हमने आगे बढ़ना, ये जरूरत है। पहले क्या बोलते थे कि लड़की पढ़ ली, लड़कियों को पढ़ाओ, उसको काम करने दो, तो अब उनकी समस्याएं उनके जीवन की खत्म होगी। अब नई नई समस्याएं आगे आ रही है, उसमें से एक समस्या है हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जिसके लिए पॉश आया है। तो उसमें ये है सब प्रोविजन, आपको मालूम है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पॉश के बारे में थोड़ा बताइए, पर मुझे लगता है कि इतना अपने को समय नहीं है कि पॉश के बारे में मैं आपको पूरा बताऊं। तो पॉश के बारे में इतना ही है कि हर इसमें आपके यहाँ कमिटीज भी होगी। जब कभी भी कुछ भी होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये सब जो है गोपनीय होता है। आप अगर कुछ उसके बारे में अगर कहीं कंप्लेंट करती है तो वो कहीं बताया नहीं जाता है, और अगर कहीं बताया गया और खोला गया तो जिसके तरफ से वो ओपन हुआ है उसको वो खुद भी अपराधी समझा जाता है, उसके लिए प्रोविजन है।
और गलत भी, अगर कंप्लेंट गलत भी हुई तो गलत कंप्लेंट करने वालों पर भी सजा है। ये दोनों साइड से। इतना ही छोटी सी बात। मुझे पोस्ट के बारे में ज़्यादा बताने की ये नहीं है, कमिटीज होती है, वहाँ तक आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और नई नई समस्या है, काफ़ी अपनी हरासमेंट है और ऐसे कई समस्याएं हमारे सामने आने लगी है। तो हम सबको इसमें से बाहर निकलना है, इसमें से आगे बढ़ना है। आप रुकी नहीं हो और रुकोगी नहीं, ये हमको पता है। आप हमेशा आगे बढ़ोगी और न्याय हमेशा आपके साथ है। तो पोएट बोले तो पोएम सुनाए बिना तो पेट ही दुखेगा ना। स्त्री महान है, रिश्तों और नातों को संवार कर तू रखती है। रिश्तों और नातों को संवार कर तू रखती है, ईंट गाड़े के मकान को घर बना कर रखती है। अस्तित्व से अपने तू पूरा जहान रखती है, याद रखना कि तू सर्वोच्च स्थान रखती है। नारी है तू, शक्ति है, तुझसे ही जहान है। झूक जब तक तू ऊंचा कर उबार न ले। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गोइंग टू, कभी भी हम झुकेंगे नहीं, जहां जो जरूरत है वहां। झूक जब तक तू कुछ ऊंचा कर उबार ले, टूटने से पहले रुक, खुद को तू संभाल ले। झूकने और रुकने की मर्यादा तू जान ले। झूकने और रुकने की मर्यादा तू जान ले। तू सशक्त शक्ति है, भीतर गुणों की खान है। तू सशक्त शक्ति है, भीतर गुणों की खान है। नारी है तू, शक्ति है तू, तुझसे ही जहान है। अत्याचारियों का हाथ तू पकड़कर रोक दे। अत्याचारियों का हाथ तू पकड़कर रोक दे। प्रताड़ित करने वालों का तुरंत साथ छोड़ दे। तू अकेली ही सदैव स्वयं में संपूर्ण है। तुझसे ही पूरी दुनिया की आन बान और शान है। नारी है तू, शक्ति है, तुझसे ही जहान है। पीढ़ियों को संस्कारित तुझे ही तो करना है। पीढ़ियों को संस्कारित तुझे ही तो करना है। प्रताड़ना पुरुषार्थ नहीं, ये बेटों को सिखाना है। प्रताड़ना पुरुषार्थ नहीं, ये बेटों को सिखाना है। गलत को सहना नहीं, ये बेटियों को बताना है। स्त्री पुरुष समान है, ये हृदय पर लिखाना है। नारी है तू, शक्ति है, तुझसे ही जहान है। तू अकेली नहीं, सद्भावी तेरे साथ है। तू अकेली नहीं, सद्भावी तेरे साथ है। कानून का भी हाथ सदैव तेरे हाथ है। न्याय दे, न्याय ले, न्याय की ही मांग कर। न्याय दे, न्याय ले, न्याय की ही मांग कर। नारी है तू, शक्ति है, तुझसे ही जहान है। तुझसे ही जहान है। आप वैसे एक सशक्त नेतृत्व के छत्र छाया में हो, तो वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी बात मैंने एकदम नोटिस की, वो बताती हूँ। आज अभी उन्होंने कहा स्वागत कीजिए, आप शॉल और श्रीफल, शॉल और ये गुच्छा देखे। हमारे भाइयों ने हमको गुच्छा दिया और वो शाल आप उठाइए। ये छोटी सी बात में ये समझ में आता है कि आप कितना गरिमापूर्ण जो है स्त्री का सम्मान रखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रनाथन जी। आपने महिला सशक्तिकरण की बात की। हमारे यहाँ हर स्त्री के अंदर देवी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने जो अनुभव बताए वो जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं। सच में आज भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। औरतों के दुख की, उन पर हुए अत्याचार की कहानी जब हम फिल्मों में देखते हैं तो वे हमें अंदर तक झकझोर जाती है। आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो फिल्मों के जरिए औरतों के संघर्ष की कहानी पेश कर रही हैं। हमारे बीच आज एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने फिल्मों के माध्यम से औरतों पर होने वाले अत्याचार को समाज के सामने रखा है। ऐसी ही एक शख्सियत श्रीमती सीमा कपूर जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। औरतों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए सीमा जी ने 2010 में फिल्म बनाई थी
हार्ट द वीकली बाजार। ये फिल्म आज भी लगभग सभी फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है। इस फिल्म के लिए आपको थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में और जागरण फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सीमा जी ने दिल्ली में श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के पपेट थिएटर से अपने करियर की शुरुआत की और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सहयोग से कई इंटरनेशनल पपेट शोज में भारत को रिप्रेजेंट किया। 1988 में दूरदर्शन पर एक हॉरर सीरियल आता था, किले का रहस्य। उस सीरियल से सीमा जी जुड़ी। उसके बाद आपने कई टीवी कार्यक्रम और सरकारी मंत्रालयों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, जैसे कि जिंदगी नामा, पलछिन, रिश्ते, विजय ज्योति, आवाज दिल से दिल तक, एक लव्य, मेरा गांव मेरा देश, अवंतिका धारावाहिक, महानदी के किनारे, ओरछा, एक अंतरयात्रा, नौटंकी एंड पारसी थिएटर और जर्नी तथा सॉन्ग ऑफ द सॉइल। 1995 में आपकी लिखी फिल्म अभय को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा 2024 में दूरदर्शन पर धारावाहिक अवंतिका बहुत ही चर्चित हुआ। इसका निर्देशन भी आपने ही किया था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि पिछले दिनों सीमा जी की एक आत्मकथा प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है यूं गुजरी है अब तलक। इस आत्मकथा में आपने बड़ी बेबाकी से और सलीके से आपसी रिश्तों की जांच पड़ताल की है। सीमा कपूर जी ने फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम कैसे बनाया, इस सफर में क्या छूटा, क्या पाया, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी में। नमस्कार। मंच पे असीम उपलब्धियों से लबालब भरी हुई नारी शक्ति, सभी कमिश्नर साहब, आप लोग, अधिकारीगण और छोटी बड़ी सब नारी शक्तियाँ जो मुझे दिखाई दे रही हैं, सब यहाँ बैठी हुई हैं। और सुमन जी ने काफ़ी तारीफ वगैरह कर दी है, खुश हो गई मैं। तारीफ सबको अच्छी लगती है। अब मेरी लाइफ की जर्नी की अगर बात करें तो मैं बहुत पुरानी हूँ और इसकी जर्नी भी बहुत पुरानी है। आप यहाँ सब बैठी हुई हैं, सब यंग हैं, हमारे सामने तो सभी यंग हैं। हमने तो जर्नी अपने जीवन की वहाँ से शुरू की है, हर चीज़ सीखने की। मैं बाकी मुद्दे बाद में बताऊंगी, पहले मैं वहाँ से शुरू करती हूँ कि संघर्ष बुरा नहीं होता। संघर्ष, अगर आपको तैरना नहीं आता और आपको पानी में छोड़ दिया जाए तो आपको संघर्ष करना पड़ता है तैरने के लिए, तभी आप किनारे पहुँचते हैं। संघर्ष बहुत विधायक होता है, संघर्ष बहुत पॉजिटिव होता है, संघर्ष होना चाहिए। हमारी सांसें हैं, हमारा जीवन है। हम जब पैदा हुए वहीं से संघर्ष शुरू हो गया, पैदा होने से पहले से संघर्ष शुरू हो गया। कितने हमारे साथ, मुझे अकेली को पैदा होने से पहले कितने स्पर्म को मैंने नष्ट किया होगा, तब मैं जिंदा रही। वहीं से मेरा संघर्ष शुरू हुआ, वहीं से मेरी जिंदगी शुरू हुई। तो हिंसा तो वहीं से शुरू हो गई मेरे जीवन में, जब मैंने किसी को मार मार के और खुद जीवन जीने की चेष्टा की और मैं जिंदा रही। तो आपकी वो जो ऊर्जा है कि मुझे पैदा होना है, मुझे जिंदा रहना है, वो विधायक होना चाहिए। पैदा होने के बाद जीवन जीने के आपके जो पूरा प्रोसेस है उससे बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। तभी आप जब कुछ चीज़ अचीव करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है। मेरी जो शुरुआत हुई है, या हम मेरे दौर की जितनी महिलाएं नारियाँ होंगी, महिलाएं हैं, हम तो आज तक सीख रहे हैं। पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी, फिर सिगड़ी आई, उसको जलाना सीखा, फिर गैस आई, फिर उसके बाद टेलीफोन आए, फ्रिज आए, ये सब हमारे सामने आए। मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता था हमारे बचपन
घर में, सिवाय इसके एक रेडियो होता था छोटा सा घर में, और उस पर भी पिताजी का आधिपत्य होता था, और उस पर बड़ी बोरिंग न्यूज़ चलती रहती थी। वो उनको न्यूज़ सुनने का ऐसा शौक था कि वो हर भाषा की न्यूज़, हम कहते थे बाबूजी अभी तो संस्कृत में न्यूज़ आ रही है, अभी तो रेडियो सुनने, हमें गाने सुनने दीजिए, तो बोले अभी नहीं, अभी आ जाएगी, अंग्रेजी में आ जाएगी। तो मनोरंजन के लिए तरसते थे हम ना। धीरे 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 जीवन के गैजेट्स आते गए, पेजर आया, उसको चलाना सीखा, हमारे से कम आधी एज वालों से हमने वो सीखा, फिर ये आए, आज तक सीख रहे हैं हम। चीज़ों में अटक जाते तो बच्चों से पूछते हैं कि भतीजों से, और कि भाई ये अटक गए, ये क्या है, फ़ोन पे या कंप्यूटर पे अटक गए। तो मेरी उम्र की जितनी महिलाएं हैं वो निरंतर संघर्षरत हैं आपसे, आप जो बैठी हुई हैं इनसे कदम से कदम मिलाने में, और इसीलिए डिमेंशिया नहीं हुआ, क्योंकि है ना, लगातार लगे हुए हैं, हम सीख रहे हैं, हमें सीखना है, सीखना। मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं जब मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे दादाजी जो थे वो पूरा परिवार कर्नल थे, मेरे दादा उस समय अंग्रेज हुआ करते थे, पार्टीशन से पहले की बात है। मेरी मदर रॉयल फैमिली से थी, उन्होंने कभी अभाव नहीं देखे थे, ना मेरे फादर ने ना मेरी मदर ने, लेकिन मेरे फादर ने एक थिएटर कंपनी बनाई, जिस तरह पारसी थिएटर कहा जाता था। पारसी मतलब फारसी का मतलब बहुत बड़े, उस जमाने में माइक नहीं होते थे, हजारों लोग बैठते थे, तो आपको स्टेज पे होना पड़ता था, और आपको इतनी अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती थी कि आखिरी दर्शक तक आपकी आवाज़ एक्टर की सुन सके, प्लस आपको जेस्चर भी बड़े बड़े बनाने पड़ते थे। अभी तो कैमरे आ गए हैं तो आपकी पलक झपक रही है, वो तब कैच करते हैं, लेकिन वहाँ दूर बैठा है, आधा किलोमीटर दूर बैठा दर्शक, तो आपको बड़े बड़े जेस्चर करते हैं, तो उसको फारसिकल बोला जाता था। तो मैं इस बात पे मुझे बहुत गर्व है कि मेरे फादर पायनियर थे थिएटर के। उसके बाद पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, इन लोगों ने थिएटर कंपनियां खोली, लेकिन वो थिएटर उस समय नॉर्थ इंडिया में गाना, नाचना, थिएटर ये खराब समझा जाता था। ये शरीफ घरों के लोग, इवन फिल्मों में तवाइफों की बच्चियां फिल्मों में आती थी, चाहे वो नरगिस हो, सायरा बानो हो, ये सब तवाइफ घराने की लड़कियां होती थी, जिन्हें शरीफ घरों की लड़कियां फिल्मों में और थिएटर में नहीं जा सकती थी। लेकिन मेरे माता पिता ने थिएटर कंपनी बनाई, 300 लोगों का बहुत बड़ा थिएटर कंपनी थी उनकी, जिसके वो मालिक थे, और इसलिए मेरे ददिहाल और ननिहाल दोनों से मेरे माता पिता को डिस्कार्ड कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। और हम जिन जिन कस्बों में, थिएटर कंपनी ऐसी थी कि आज एक महीना एक गांव में रही, एक कस्बे में रही, ऐसे जगह जगह जाते थे। हम जिन जिन जगहों पे रहे हैं, वहाँ की कोई भी लड़कियाँ या महिलाएं हमारे घर में नहीं आती थी। उनको ये बोला जाता था कि नाटक कंपनी, नाचने गाने वाले लोग हैं, इनके यहाँ नहीं जाना, तो वो उपेक्षा भी सही। लेकिन हम लगे रहे, पूरा परिवार लगा रहा कि आर्ट की सेवा करना है। उसमें से सबसे बड़े, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वो भी राष्ट्रपति अवार्ड विनर हैं, रंजीत कपूर। उन्होंने बहुत सारी, अभी हम बात कर रहे थे सरिता से, उन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी हैं। थिएटर के तो वो बहुत बादशाह कहे जाते हैं। उन्होंने फिल्में लिखी हैं, जाने भी दो यारों से लेके लज्जा, खाकी, मंगल पांडे, बहुत सारी फिल्में याद नहीं आ रही है एकदम से, बैंडिट क्वीन, बहुत सारी फिल्में लिखी हैं उन्होंने। और मेरे उनके बाद के जो भाई हैं अन्नू कपूर, तो हम वो एक्टर हैं, सिंगर हैं, सब मतलब, तो वो माता पिता का जो हमारे उस वक्त का संघर्ष था, जिन फिल्मों ने, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमारी थिएटर कंपनी आगे बढ़ी तो फिल्मों ने समाज में जगह बनाई, मनोरंजन के लिए अब सिनेमा आ गया था। तो थिएटर कंपनियां पहले मनोरंजन का साधन होती थी, जिनके गांव में लगती थी, लोग टिकट लेके जाते थे, थिएटर देखते थे। धीरे धीरे सिनेमा की वजह से थिएटर कंपनियां बंद होने लगी। तो जितनी कंपनियां बंद हुई
उनके सारे विस्थापित लोगों को, मेरे फादर को ना कहना नहीं आता था, तो उन्होंने अपने यहाँ रख लिया। उनको थिएटर कंपनी बंद है तो भी तनख्वाहें दे रहे थे, तो उसमें हम कर्जों में चले गए, सारा सामान बिक गया। और जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो एकदम सड़कों पे आ गए, मतलब भूखमरी देखी, बहुत संघर्ष ऐसा कि कई दिनों तक हम लोग खाना नहीं खा पाते थे। लेकिन उस थिएटर कंपनी की जो उपज है, अगर मैं आपको बोलूँगी, कुछ नाम लूँगी आपको, कि मेरे फादर की थिएटर कंपनी से वो लोग निकले जिन्होंने वहाँ पे लिपस्टिक लगाना सीखा, गाना सीखा, नाट्य सीखा। उनमें अगर आपने शायद नाम सुना हो, शकीला बानो भोपाली एक हुआ करती थी, महमूद साहब एक हुआ करते थे कॉमेडियन, उनके फादर हमारे यहाँ थे। आप सब जानते होंगे लीला मिश्रा जो मौसी बनती है ना, शोले में भी मौसी बनी थी, वो हमारे थिएटर की हैं। रघुवीर यादव जो आज भी पंचायत वगैरह में है, वो हमारे थिएटर में, जब वो 9वीं कक्षा 15 साल के थे, तो हरपालपुर में हमारे थिएटर कंपनी में आ गए थे। तो ये तो जर्नी रही है। अब रही, मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ क्या, 2 मिनट और लेती हूँ। ये मेरी जीवन की जर्नी रही है। उसके बाद थिएटर से हमारा फिल्मों में आना हुआ। जब कोई महिला नेतृत्व संभालती है तो उसको सीरियसली नहीं लिया जाता। अगर मैं आपसे कहूँ, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप फ्लाइट में बैठी हैं और कैप्टन लड़की हो, तो एक बार आप लोगों के दिल में भी डाउट आता है, जो मेरे एक बार आया था। तब मैंने अपने आप को कोसा कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि कोई, वो तो ज़्यादा जिम्मेदार होगी, वो ज़्यादा अलर्ट होगी, क्योंकि उस पुरुष को प्रूव करने का कुछ नहीं है। औरत को बाहर निकलते ही प्रूव करना पड़ता है, हर कदम पे उसको साबित कर रहा होता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। उसको सहज रूप से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप नेतृत्व संभालते हैं, आपके साथ जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनको आप पे डाउट होता है। फिर आपको एक सख्त महिला का आवरण ओढ़ना पड़ता है कि आप बहुत सख्त हैं, लोग बोलते हैं खड़ूस हैं, क्योंकि आपके हाथ में नेतृत्व है, आपकी बात नहीं मान रहे। मैं बता रही हूँ ना, मैं 23 साल की थी, मैंने पहला सीरियल डायरेक्ट किया था, किले का रहस्य। कोई सुनता ही नहीं था मेरी। एक तो यंग, ऊपर से आप महिला हैं, आपको क्या आता होगा कि आप डायरेक्ट करेंगी इतने। और फिर कितने बड़े बड़े एक्टर थे, वीरेंद्र सक्सेना थे, अनु कपूर थे उसमें, अनु भाई, इतने नाम वाले लोग, पीयूष मिश्रा, ये सब उसमें ले रखे थे मैंने। तो सब अपने आप को तुर्रम समझते थे, हम क्या टुटपुजिए छोटे से। तो आपको, जो भी लड़की जब कोई काम करती है, नेतृत्व वाला काम करती है, पहला उसका सबक है कि वो एक्सप्लॉइट ना हो किसी भी तरह से। मैं फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं करती हूँ, हर तरह के एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। लड़की लड़की को एक्सप्लॉइट करती है रूल करके कि तुझे नहीं आता, मुझे आता है, तुम वहाँ बैठो, ठीक है ना। सबसे पहला आपका रूल होना चाहिए, आपको जो काम करने जा रही है वो आना चाहिए। उसमें आपको सिद्धहस्त होना पड़ेगा, तब जाके आप जो सारे लोग हैं ना, वो आपकी इज्जत करेंगे। नहीं, इसको तो काम आता है, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, फिर चीज़ें आसान हो जाती है समाज में। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि नारी शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है। आपको मालूम है, पेन जो होता है, दर्द जो होता है, हार्ट अटैक आए या कुछ भी बीमारी आए, उसका दर्द डोल में गिना जाता है। जैसे लीटर और किलो में हम लोग चीज़ें तौलते हैं, दर्द डोल में तौला जाता है। 9 डोल एक हार्ट अटैक में पुरुष झेल नहीं पाता, उसकी डेथ हो जाती है, या 5 डोल तक वो सह जाता है, 5 डोल के बाद उसकी डेथ हो जाती है। हर एक डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में औरत को 9 डोल दर्द होता है। अब सोचिए कितनी, और वो क्या शक्ति है
कि 9 डोल दर्द के बाद एक महिला बच्चे को जन्म दे रही है, और हमारे समय की महिलाओं ने तो 11-11 बच्चे पैदा किए हैं। सचमुच हम भी 4 बहन भाई थे। बचपन में हमें बड़ी शर्म आती थी लोग, क्योंकि तब नारा चला था हम 2 हमारे 2, और हम 4 थे। तो हमें बड़ी शर्म आती थी। कितने भाई बहन हैं? 4 हैं। सॉरी क्या और उससे पहले हमारे दादी वादी के तो 11-11 हुआ करते थे। तो धीरे धीरे संख्या घटती गई। अब तो शायद 1 पे ही आ गई है। मामा और मौसी के शायद 50 साल बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे। है वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए ना, क्यों वो 9 डोल सह सकती है महिला, कोई नारी, कोई स्त्री? सबसे बड़ी समझने की बात है, क्योंकि वो सृजन कर रही है, प्रेम है, एक किसी को जन्म दे रही है, तो वो झेलती है, तो वो झेल सकती है। वायलेंस में नहीं झेल सकती हो। अगर वो सास से लड़ेगी ना तो कभी प्रेम नहीं पाएगी, या बहू सास से लड़ेगी तो प्रेम नहीं पाएगी, पत्नी पति से लड़ेगी तो प्रेम नहीं पाएगी, है ना। प्रेम जब होता है सृजन होता है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है आपको, न्यायपालिका की तो पूरी बात उन्होंने बता दी है। मेरी जिंदगी का न्याय जो मैं वो करती हूँ वो है प्रेम। अगर आप प्रेम करेंगी तो प्रेम ही मिलेगा, बिना निस्वार्थ प्रेम से प्रेम मिलेगा। वो है सना शिंदे, जिनका पूरा नाम है सना केदार शिंदे। 2023 में मराठी फिल्म शाहीर से सना ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, और इस फिल्म की एक गाने ने सना शिंदे को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। वैसे तो हिंदी गाने तो दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन सना शिंदे ने बहरला हा मधुमास नवा इस गाने से दुनिया को भारत की मराठी भाषा से भी पहचान करा दी। सना शिंदे को भले ही प्रसिद्धि रातों रात मिली हो, लेकिन इसके पीछे उनकी 4-5 साल की तपस्या, कड़ी मेहनत और अनुशासन छिपा हुआ है। सना ने पढ़ाई के साथ साथ 4 साल तक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। बिहाइंड कैमरा कैसे काम होता है इसे सीखा। कलर्स मराठी के एक शो में क्रिएटिव हेड के तौर पर काम किया, और फिर आया साल 2023, जिसने सना को उनकी जिंदगी का सबसे खास मौका दिया। फिल्म महाराष्ट्र शाहीर से सना ने अभिनय का सफर शुरू किया, और इस फिल्म का एक गाना बहरला हा मधुमास नवा दुनिया भर में वायरल हुआ, और इसी के साथ सना अपनी ही पहली फिल्म के साथ हिट हो गई। महाराष्ट्र शाहीर को सना को 2024 का जी गौरव अवार्ड मिला। इसके बाद भी सना को कई अवार्ड मिल रहे हैं। सना शिंदे अब तो फिल्म निर्मात्री भी बन गई हैं। सना शिंदे इन दिनों क्या कर रही हैं और आगे की क्या प्लान्स हैं, इसके बारे में बताने के लिए अब मैं आवाज़ देती हूँ सना शिंदे को। एक बात मैं बताना चाहूँगी, सना मेरे सामने धीरे धीरे बड़ी हुई है, और सना के सामने मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ। थँक्यू सो मच आंटी. नमस्कार सगळ्यांना. ॲक्च्युली माझं जेवढं एज आहे त्याच्यापेक्षा जास्ती तर ह्यांची जर्नीज आहेत. सो मला असं जर्नीविषयी सांगायला काहीच नाही आहे, कारण मी सुरुवात आत्ताच केली आहे. पण आय कम फ्रॉम अ व्हेरी कल्चरली आणि what do you say, like a very creative family. Like my entire family is a part of this industry. My great grandfather पद्मश्री शाहीर साबळे ते तर आहेतच. आता महाराष्ट्र माझा आपण सगळीकडेच ऐकतो ते त्यांच्याच आवाजात आहे. त्याच्यानंतर माझे वडील केदार शिंदे, त्यांचं तर TV, फिल्म्स, नाटक याच्या सगळीकडेच त्यांचं आहे. पण मला इथे एक छान उल्लेख करायला आवडेल की माझी आई ती आहे म्हणून मी आणि माझे बाबा आम्ही आहोत इथे. ती अशी व्यक्ती आहे की मे बी तिने तिचं करिअर गिव्हअप नसतं केलं तर आय थिंक मी इथे नसती, किंवा बाबांना पण तेवढं काय बोलतात क्रिएटिव्हली किंवा एक सेफ स्पेस आपण म्हणतो की केदार तू जा, तू तुझी कामं कर,
मी आहे, मी सणाला सांभाळते. जसं आपण दोघं, छोटाच संसार होता त्यांचा, आपण दोघं मिळून हे सांभाळूया. आणि तिच्यामुळेच मी आहे इथे. किंवा बाबा पण माझे तेच बोलतात की आई आहे म्हणून आम्ही दोघंही आहोत. छोटी फॅमिली आहे, 3 जण आहोत. पण मी एक गोष्ट मला लहानपणापासून सांगितली की सना, कोणी तुला उद्या ना असं ना बोलायला पाहिजे की तुला ही गोष्ट येत नाही. तू जे काय करशील, तू जे करिअर चूज करशील किंवा कुठल्याही छोटं गोष्ट असेल. म्हणजे लहानपणी मी इतकी इंट्रोवर्ट होती की असं कुठेही गेलो की अरे टिश्यू पेपर मागायला जा. आय टू बी लाईक नाही नाही मी नाही जात आहे, प्लीज 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 आई तू जा ना. शी लाईक नाही तू जा. तर तिच्यामुळे शी वॉज द वन हू वॉज लाईक ओके यू नीड टू बी आउटस्पोकन. इफ यू वॉन्ट टू सर्वाइव्ह इन दिस वर्ल्ड you need to stand up for yourself and you need to be this person. आणि ती आहे. तिने अजून एक गोष्ट मला दोघांनी, आई वडिलांनी दोघांनी तेच गोष्ट सांगितली की तुम्ही कितीही मोठे झालात, तुम्ही कितीही कुठलीही उंची गाठली, उद्या तुमच्याकडे खूप पैसा असू दे, खूप नाव असू दे, कुठल्याही क्षेत्रात असाल, सना तुझं डोकं जमिनीवरती आणि पाय जमिनीच्या आत असायला पाहिजे. कारण दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. तू सगळ्यांबरोबर नीट राहिलीस तर सगळे तुझ्याबरोबर नीट राहतील. इथे जेंडर आणि या गोष्टींविषयी ते नाहीच आहे. इट वॉज मोर लाईक की इट्स अबाउट अ पर्सन. इफ यू आर नाईस टू वन पर्सन, द अदर पर्सन इज गोना बी रियली नाईस टू यू. सो दॅट्स इट. आणि थँक्यू सो मच मला इथे बोलवल्याबद्दल. आता आय हॅव लाईक started producing films आणि लकीली किंवा फॉर्च्युनेटली माझी पहिली फिल्म पण खूप विमेन ओरिएंटेड होती. अगं अगं सूनबाई काय म्हणता सासूबाई, जे महाराष्ट्रांचं असतील आय थिंक त्यांनी नाव ऐकलं असेल किंवा बघितली पण असेल. पण त्या फिल्ममुळे सुरुवात झाली. ती कम्प्लिटली फिमेल ओरिएंटेड होती. आणि ह्याच्या पुढेही जे काम असेल, जशी माझी टीम, आम्ही सगळ्यात जास्ती बायकाच असतो, खूप कमी असे पुरुष असतात त्या टीममध्ये, पण सगळे खूप छान प्रमाणात आणि छान एकत्र राहून काम करतात. सो इट्स अ व्हेरी सेफ स्पेस. अँड सिमिलरली ह्याच्या पुढे जे काम करू तेही असंच छान काम करता येईल. सो थँक्यू सो मच. थँक्यू एव्हरीवन मला इथे बोलून. बहुत बहुत आभार सना जी. अच्छा हुआ आपने मराठी में बोला. यहाँ पर बहुत सारे लोग, ज़्यादातर मराठी है और हमारे महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है. अच्छा लगा. हम चाहते हैं, हमारे सबकी तरफ से दुआएं हैं कि आपका सफ़र और हसीन हो. आज ज़माना है OTT प्लेटफॉर्म्स का, जहाँ पर आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की मूवी शोज़ को अपनी भाषा में देख सकते हैं, क्योंकि इनको हिंदी आदि भाषाओं में डब किया जाता है. तो हमारी आज की अगली मेहमान है एक वॉइस एंड डबिंग आर्टिस्ट शगुफ्ता बेग. साउथ की कितनी फिल्मों के हीरोइनों के डायलॉग आपने इनकी आवाज़ में सुने होंगे. आज जब उनको बोलते सुनेंगे तब आप पहचानेंगे. जैसे कि KGF चैप्टर 2 में श्रीनिधि शेट्टी और तापसी पन्नू, तमन्ना भाटिया, साई पल्लवी, सामंथा प्रभु, हंसिका मोटवानी और काजल अग्रवाल. शगुफ्ता जी मुंबई की हिंदी वॉइस एक्ट्रेस हैं और अपनी वर्सेटाइल आवाज़ के लिए जानी जाती हैं. आप लोगों को याद होगा कि साल 2006 में 2006 में जी जिंदगी पर एक टर्किश सीरियल फातिमा गुल आता था, जो काफ़ी फेमस हुआ था. उस सीरियल में हीरोइन फातिमा गुल की हिंदी में डबिंग करने वाली हमारी शगुफ्ता बेग ही हैं. शगुफ्ता जी मुंबई की घर घर में बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय हैं. जिन लोगों के घर में कार्टून देखने वाले बच्चे होंगे, उन्होंने एनिमेटेड कार्टून सीरियल पोकेमॉन से ज़रूर देखा होगा. पोकेमॉन में एक फीमेल कैरेक्टर है जेसी, जिसे शगुफ्ता जी ने अपनी ही आवाज़ दी है. आज उसका नमूना भी पेश करेंगी. शगुफ्ता जी रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं. ये जब रेडियो में आई थी, ऑल इंडिया रेडियो पर, FM रेडियो रेनबो में, उससे काफ़ी पहले मैं रेडियो छोड़ चुकी थी. आपको साल 2006 से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 18 साल से ज़्यादा का अनुभव है. तो आज आपके सामने है ओरिजिनल शगुफ्ता बेग अपनी ओरिजिनल आवाज़ में. मैं दिखाई दे रही हूँ क्या यहाँ से, वरना मैं यहाँ आ जाऊँ. यहाँ से ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है.
पहले तो नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब आप सभी को। हाँ, थैंक यू, ये बेटर है। तो आज महिला दिवस है और हम लोगों के लिए प्रोग्राम किया गया है और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले बैठे पुरुष हैं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया है, हमारे अधिकारी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके इस मंच पे हम लोग आए और इस तरह से जुड़े, एक दूसरे के बारे में जाना। और स्पेशली चंदा जी और सीमा जी की जो जर्नी है, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा जो हम सब सुन के अभी मिल रही है, मतलब आगे भी हम जो जिंदगी में करेंगे, मैं जो कर रही हूँ आगे भी बढ़ूंगी, तो वो जो बातें इन्होंने कही, कितना कुछ सीखने को हमें मिलता है उन बातों से। और जैसे चंदा जी ने बताया, जहाँ वो थी तो वहाँ टॉयलेट भी नहीं होती थी और वो अकेली फीमेल थी, वो एक अलग तरह का स्ट्रगल और चैलेंज था। सीमा जी जहाँ से है वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं था किसी तरह का, तो भी वो एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनी, इतना खास हिस्सा बनी। तो ये सारे चैलेंजेस पार करके इंसान एक मकाम हासिल करता है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और मैं भी बता दूं, मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं यूपी के छोटे से कस्बे से हूँ जिसका नाम है राठ, यूपी में आता है, राठ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, जो झांसी से 2 घंटे का सफ़र है बाय रोड। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मैं जब वहाँ से आई यहाँ, उस वक्त मैं बता दूँ वहाँ पर कोई थिएटर नहीं था, कोई थिएटर नहीं था, कोई मॉल, कोई रेस्टोरेंट। मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन घर पे जब डीडी आता था, दूरदर्शन सबसे पहले जो चैनल, तो वो जब मैं देखती थी फिल्म फेयर अवार्ड्स और जो 31 को स्पेशली दिसंबर में हम घर पे बैठते थे फैमिली के साथ, तो वो देखकर मुझे ऐसा लगता था काश मैं इसका हिस्सा बनूं। वो ऑडियंस या लोग या स्टेज पे लोग हैं, मुझे लगता था वो मैनिफेस्टेशन होता है ना जो हम करते हैं जिंदगी में, तो मेरे लिए वो सच साबित हुआ। और कहीं ना कहीं से वाया वाया मैं मुंबई पहुंची और यहाँ आने के बाद भी मैंने पहले वॉइस या डबिंग नहीं की। सबसे पहले अलग अलग जैसे जर्नी के हिस्से होते हैं, तो मैंने पहले इवेंट मैनेजमेंट किया और मुझे याद है यहीं पे 3 महीने मैंने इंटर्नशिप की थी सीप्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वहाँ पे तो मुझे वो याद आ गया। और उसके बाद मैंने ट्रैवल एजेंसी में जॉब की 1 साल। उस दौरान जब लोग मुझसे बात किया करते थे फोन पे, हेलो हेलो यस, तो वहाँ मुझे वो कहते हैं ना, डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ ले आती है। तो मैं किस्मत से ही इस फील्ड में आई हूँ, कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे पता नहीं था वॉइसिंग डबिंग होती क्या है। और मैं भी आपको बता दूं क्या होती है डबिंग के एक कैरेक्टर है जो किसी भी भाषा में बोल रहा है अपने डायलॉग्स, साउथ लैंग्वेज हो सकती है, कोरियन, स्पेनिश, इंग्लिश, उसको हम हिंदी में डब करते हैं। तो मैं मोस्टली हीरोइन डब करती हूँ, तो वो किसी भी भाषा में बोल रहे हो, लेकिन हमें उनके इमोशंस को मैच करना होता है। भाषा जो होती है उसको एग्जैक्टली मतलब अच्छी भाषा, साफ भाषा में बोलना होता है, और तो वो चीज़ डबिंग कहलाती है। तो उस तरह से मेरे क्लाइंट ने कहा कि तुम क्या कर रही हो इसमें जॉब में, तुम जाओ और रेडियो या इसमें ट्राई करो। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी और इसके लिए कोशिश की। तो शुरुआत में डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगी सभी बैठी हुई यहाँ जो लड़कियाँ, प्यारी प्यारी महिलाएं, कि कोई भी चीज़ ना आसान तो नहीं होती है, लेकिन जब हम ठान लेते हैं, ख्वाहिश होती है कुछ करने की, तो बिल्कुल ऊपर वाला जरिए बनाता है और हम उस चीज़ को कर पाते हैं। तो आज जो है मैं ऑलमोस्ट 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 20 साल होने को है। तो जितनी भी साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जो बताया सुमन जी ने, वो मैंने डब की हैं। उसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजोन पे भी बहुत सारी सीरीज़ हैं और सारी चीज़ें, तो वो मैं करती हूँ। और उसमें जो सबसे पॉपुलर जो कैरेक्टर सुमन जी ने बताया तो मैं ज़रूर बोलकर बताना चाहूँगी। तो पोकेमॉन जो सीरीज़ है, तो उसमें ना जैसी है टीम रॉकेट, काफ़ी लोग अगर देखते हो या आपके बच्चे जो शादीशुदा हैं वो देखते होंगे, तो जैसी और जेम्स 2 कैरेक्टर हैं टीम रॉकेट के, तो दोनों के डायलॉग मुझे ही बोलने होंगे बिकॉज अभी जेम्स है नहीं तो कुछ इस तरह से बहुत फेमस है, अभी भी वायरल होती है कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सबको एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी, जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या करो हमसे फाइट। तो ये डायलॉग। शफुक्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्रेम को क्या समझती हैं? प्रेम को क्या समझते हैं? लेकिन अभी भोजपुरी मैंने किया है, पर अभी आई विश मैं याद करके आती पर हाँ, मतलब जब डबिंग डायरेक्टर बैठे होते हैं तो मैंने भोजपुरी में भी बहुत डब किया। एक सीरीज है देवों के देव महादेव,
बहुत फेमस। तो उसमें जो सती और पार्वती का जो किरदार है ना, वो मैंने भोजपुरी में डब किया है, पूरी सीरीज डब की है। उस टाइम पे गंगा चैनल आता था, तो मुझसे बुलवा के दिखाते थे लोग, मतलब बोल के दिखाओ ऐसे वैसे। तो मैंने कोई भोजपुरी फिल्म की थी जो बहुत ही उनको फनी लगता था, कि वो कहती थी कि राम हम तुम्हारे बिना ना जी सकेला, हम तो हर दिन मर जाएगा राम, तो हमरा के छोड़ के ना जा सकेला, हम तो काम करेंगे मगर तुम कहीं समझा सकेला राम, तुम कहीं समझा सकेला। तो इस तरह की चीजें बहुत ही एंटरटेनिंग वे में, मतलब बहुत इमोशंस भी होते हैं, ऑफ कोर्स हमें रोना होता है, हंसना होता है। और मुझे याद है कि मेरी जो सैलरी थी जब मैं पहली जॉब करती थी, मेरी 3,500 रुपए की सैलरी थी जो मंथ में आती थी। और जब मैं इस फील्ड में आई, तो जब मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला, या एक होता है क्राउड एम्बियंस डब होता है, तो उसमें एक हंसी मैच करनी थी। मुझे याद है प्रकाश झा साहब की कोई फिल्म थी, तो एक हंसी मैच करने के लिए मैं गई, मैंने किसी भी समझ लो इस तरह का कुछ मैच करना था। तो मुझे ना, जब मैंने खत्म किया तो मुझे एक एनवलप मिला, उस लिफाफे में 1000 रुपए थे। एंड मतलब मैं बता रही हूँ कि वो जो एक फीलिंग होती है ना, बहुत ऐसी कि अरे वाह, मेरी काबिलियत पर मुझे ये चीज भी कितनी मायने रखती है। ये एक तरह की कला है, आर्ट है, जो दिखाकर आप पैसा कमा सकते हैं और इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलता है। उसके अलावा KGF 2 जो साउथ इंडियन फिल्में हैं, KGF 2 है, कंचना 2 में तापसी पन्नू को डब किया, थेरी एक फिल्म है, समंथा प्रभु, एक फिदा फिल्म है बहुत फेमस, साइन पल्लवी है उसमें, बहुत प्यारी फिल्म है वो। KGF 2 की 2 लाइन वो एक है कि वो जब लड़ाई पे जा रहा होता है तो वो आती है और कहती है कि जो भी भला होने वाला हो सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हें लगने वाली सारी बात सिर्फ मुझे ही लगे। इस तरह से बहुत सारे किरदार हैं एंड और अभी भी जर्नी चल रही है और मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर आकर। और कहते हैं ना कि जब आपके काम के लिए आपको जो रिस्पेक्ट मिलता है, इस मंच पर बुलाया गया मुझे इस तरह से, तो आई एम श्योर हर कोई यहाँ पर जो है वो अपनी तरह से बहुत कुछ कर रहा है ज़िंदगी में और एक दूसरे से सीख रहा है, मैं भी सीख रही हूँ। तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं खुद की, कुछ हर एक यहाँ बैठी लड़की के लिए, कि जब वो खुद पर शक करने लगती है ना, कभी होता है ना, हमें पता होता है हम अच्छे हैं इन चीज़ों में, लेकिन कभी कभी फिट आउट्स आते हैं, पता नहीं। तो उस पर ये था कि आप सभी को डेडिकेटेड है कि तुम, हाँ तुम किसी से भी कम नहीं हो, बहुत खास हो तुम, जमाने की भाग दौड़ में चैनो सुकून का एहसास हो तुम, हाँ तुम किसी से भी कम नहीं हो, बहुत खास हो तुम, जमाने की भाग दौड़ में चैनो सुकून का एहसास हो तुम, थोड़ी सी मासूम, बहुत ज्यादा जज्बाती हो, पर जब भी कोई मशवरा मांगे तो क्या खूब समझाती हो तुम, हाँ तुम जिसके दिल में सबके लिए प्यार बेशुमार है, जो हर खुशी हर नेमत की हकदार है, बुरे वक्त में जो काम आए वो जरूरत हो, कभी मत भूलना कि तुम कितनी खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक और बहुत ही इंस्पायरिंग सी ये नज्म है जो लिखी है फहमीदा रियाज साहिबा ने। तो ये भी मैंने जब पढ़ी मुझे बहुत हिम्मत मिली। तो ऐसा होता है जब हम कुछ करने वाले होते हैं ना जिंदगी में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको डराते हैं, आपको बोलते हैं नहीं ये करोगे ना नहीं हो पाएगा, और ये सब पे लागू होता है, लड़का हो लड़की हो। और कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जो आपको डराते हैं आपका दिमाग उसमें ज्यादा जाता है। तो वो एक नज्म है कि वो कहती है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। Thank you to all our esteemed guests. In fact, you all would agree with me that their stories were encouraging, motivating, and enticing. I personally, after listening the entire session, I'm feeling so happy, and thank you, Suman, for choosing to bring them here, this wonderful panel. Whether it is Chanda ma'am's inspiring story that even being as aaj bhi
See, she spoke about a day in 1975. But even today I know हम लोग आज भी हिचकिचाते हैं कहीं जाना हो, and if you are the only girl or lady, अरे नहीं यार मैं अकेली हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, बाकी सारे जेंट्स हैं. आज भी बोल रहे हैं हम लोग. After 50 years, when she has started that journey, so she is a true inspiration. And to Seema ma'am, जिन्होंने उनके अपने फैमिली का साथ दिया. She told कि they had literally seen days when they were मतलब भूखे थे वो. She could have just chosen कि जैसे अभी के जनरेशन के हैं, मैंने देखे काफी बच्चे वो अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल का साथ देना बहुत लोग पसंद नहीं करते. They move out of their houses. उन्होंने अपने फैमिली के साथ रहकर उनका साथ दिया एंड उनके मम्मी पापा का जो भी उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था उसको आज तक आगे बढ़ा रही है. Sana, as she said, she is very young, she has just started the journey. But one very beautiful lesson that she has given to all of us is the kind of appreciation she has for her parents. And you know, हम भी आज अपने बच्चों को जब बोलते हैं उनको यही लगता है यार तुझे कुछ नहीं समझता. But Sana chose to understand what her parents were trying to convey, and that is why she is successful and she is here on this dais. And last but not the least, Shagufta ma'am. अब मुझे पता है जब मैं साउथ की मूवी देखूंगी, साई पल्लवी को देखूंगी और तापसी पन्नू को देखूंगी, शक्ल उनकी है लेकिन ये मीठी आवाज कहाँ से आ रही है वो शक्ल भी मेरे आंखों के सामने. Once again, thank you all of you, and special thanks to JDC sir and DDC sir for sparing their valuable time and coming here and being amidst us and making us feel very special and empowered. Thank you to the entire SEEPS team and all you beautiful ladies who chose to come here, and I am sure you all had a wonderful time. ज़्यादातर वुमेन्स डे में बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं यार डीजे डांस ये वो, पर ठीक है डीजे डांस हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे काबिलियत वाले जो हमारे ही टाइप के औरतें हैं जिसको हम देखकर इंस्पायर हो सकते हैं कि you know ये है जहां हमको पहुंचना है. क्योंकि one thing in common they all had is that positive aura. देखो उनकी चेहरे पे जो ग्लो है, उनकी जो कॉन्फिडेंस है, maybe many of us are lacking. So that is one motivation we should have कि सब लोग अगर उस निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों में we can set examples for the generation to come. So with this I conclude with a beautiful note. Today we celebrated talent, strength and inspiration. May the spirit of this day remind us that empowered women create empowered communities. Let us continue to build workplaces where every woman can dream, achieve and lead. Thank you very much. Now, actually when I had announced this Women's Day celebration and we had contacted many units, one of the unit came forward, that is Renaissance Global Limited, and they had actively participated in the 55th National Safety Week and had taken a wonderful initiative to spread awareness on workplace. So they expressed a desire to present that skit, a small skit of 5 to 10 minutes in front of us, for which our JDC sir has given his consent. So I would kindly request all of you to just be seated for another 5 minutes because सब कुछ है लेकिन safety सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. So they are just trying to reach out to us and you know just present that skit in front of us. So just be patient for 5 more minutes. Thank you. इस वर्ष की 55th नेशनल सेफ्टी वीक में आप सभी का स्वागत है. यहाँ उपस्थित सारी महिलाओं को रेनेसेंस ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वजह से तरफ से महिला दिन की शुभकामनाएं. इस वर्ष की सुरक्षा का मूल्य विषय है
की सुरक्षा की उन्नति के लिए लोगों को इकट्ठित करें, शिक्षित करें और सक्षम बनाएं, ताकि हम खुद की सुरक्षा के साथ दूसरों की भी सुरक्षा कर सकें। सुरक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकी जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा कोई नियम नहीं है, सुरक्षा कोई नियम नहीं है, सुरक्षित जीवन जीने के लिए अनंत काल तक का सफर है। नमस्कार दोस्तों, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है और उन अलग अलग डिपार्टमेंट में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम पीपीई किट नहीं पहनेंगे तो हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये हम अभी इस एक्ट में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक कर्मचारी हूँ और जो मैंने पहन रखा है ये पीपीई किट है, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट। अगर हम किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते वक्त अगर ये किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है? वन बर्न्स कैन नॉट बी रिटर्न बैक। एक बार जली हुई चीज दोबारा वापस नहीं आती। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हमारे रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में नाइट्रिक एसिड करके केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। इस बंदे ने उस केमिकल को बिना पीपीई किट के यूज किया और उसकी यह दशा हुई। अगर सेफ्टी हैंड ग्लोव्स का अगर ये इस्तेमाल करता तो उसके हाथ की इस तरह नहीं जलते। अगर फेस मास्क और गॉगल्स का इस्तेमाल करता तो उसके चेहरे की यह दशा नहीं होती। आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल होता है और मैनेजमेंट ने उस केमिकल से होने वाले हादसों से बचने के लिए आपको सुरक्षा किट दी हुई है। तो आप कोई भी काम करते वक्त अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, उस पीपीई किट का इस्तेमाल करेंगे, तो जिस तरह मैंने अपने आप को सुरक्षित रखा है उसी तरह आप भी सुरक्षित रहेंगे, ना कि ये होगा। तो मेरा एक ही नारा है, सुरक्षा का एक ही नारा, सुरक्षा का एक ही नारा, पीपीई से भाईचारा। देखा दोस्तों, हमारे लापरवाही का दुष्परिणाम। इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, पीपीई पहनना बहुत जरूरी है। पीपीई पहन के हम सुरक्षित काम कर सकते हैं। रखोगे केमिकल की जानकारी तो काम करने में नहीं होगी परेशानी। स्टे सेफ, वर्क सेफ, स्टे होम सेफ। सुरक्षतेसह घेते भरारी तीच आहे आजची खरी नारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग रोज काम पर आते हैं तो अलग अलग साधनों का सफर करते हैं, जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी, रिक्शा और पैदल चलकर हम ये साधनों का उपयोग करके काम पर आते हैं। बस और ट्रेन ये तो मुंबई की लाइफलाइन है, तो इसमें तो कितने लोग रोज सफर करते ही होंगे, करते हैं ना? तो हादसे होते ही होंगे। तो वैसा एक हादसा ट्रेन का आज हम देखने वाले हैं ये ऐड में। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर येणारी लोकल चर्चगेट के लिए तेज लोकल है। अरे राजा, यही डब्बा मिलता है तुम लोग को चढ़ने के लिए। चलना पीछे चलना। अरे गिर गई यार। देखा दोस्तों, वो लेडीज की लापरवाही की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। अब देखते हैं उसका परिणाम उस पर क्या हुआ 1 महीने बाद। जी हाँ दोस्तों, वो बदनसीब मैं ही हूँ जो रेल दुर्घटना का शिकार हो गई। जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हमारे तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए था मुझे ऐसा जीवन।
क्योंकि मेरी वो हैबिट बन चुकी और उसी और कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने उस दिन चालू ट्रेन पकड़ तो ली, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। उस दिन मुझे काम पर टाइम पर पहुंचना था क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन था। वही बात मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी। काश उस दिन मैंने वो ट्रेन छोड़ दी होती तो क्या होता। एक लेटमार, एक हाफ डे या किसी वरिष्ठ अधिकारी की 4 बातें सुननी पड़ती। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एक वार्निंग लेटर मिलता। कम से कम मेरी ये हालत तो नहीं होती दोस्तों। ये जीना भी कोई जीना है, उससे अच्छा मैं मर जाती। लेकिन मेरी एक लापरवाही की वजह से मेरे परिवार को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। जिस उम्र में मुझे उन्हें खुशियां देनी थी, उस उम्र में मैंने उनको आंसू दे दिए और चिंता की खाई में धकेल दिया उनको। काश उस दिन मैंने वो ट्रेन छोड़ दी होती, छोटी सी समझदारी दिखाई होती तो ये हाल नहीं होता। आज हम सब क्यों भाग रहे हैं? अपने परिवार के खातिर तो भाग रहे हैं ना। अपना परिवार ही अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। इसलिए कहती हूँ सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल कीजिए और अपना घर परिवार खुशियों से बनाइए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दोस्तों, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सुरक्षा ये कोई नारा नहीं है दोस्तों, एक जीवन शैली है। जैसे हम जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसी तरह हमें अगर खुशहाल जीवन जीना है तो सुरक्षा नियमों का उपयोग करना चाहिए, तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, अपना परिवार सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेगा तो अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। तो क्या आप सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करोगे? नहीं तो मेरे जैसा जीवन आपको लंगड़े की तरह व्यतीत करना पड़ेगा दोस्तों। क्या आपको ये मंजूर है? नहीं। इसे एक नाटक या ड्रामा समझकर एंजॉय मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि समय हर वक्त साथ नहीं देता, समय हर वक्त साथ नहीं देता दोस्तों। देखा दोस्तों, वो लेडीज के साथ कितना बुरा हुआ। इसीलिए कहती हूँ, जब भी आप ट्रेन से सफर करो तो पहले उतरे फिर चढ़े, तो इससे हादसे नहीं होंगे। और सुरक्षा के नियमों का पालन करो। तो आप सभी लोग सुरक्षा का नियम का पालन करेंगे? धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हुए हम लोग अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं, काम पे आ जाते हैं, पर क्या आप सभी लोग काम अपने घर पर अपनी सुरक्षा रखते हो? हाँ ना कुछ? ज्यादा करके यहाँ पे महिला बैठी है जिनका किचन में ज्यादा समय रहता है। क्या शाम को सोने के टाइम पे ऐसी कोई महिला है जो रेगुलर गैस को बंद करती है नीचे से? उसने उठाया तो मैं भी उठाऊंगी, ऐसा नहीं ना। जो करते हैं वही करो। मतलब 10 या 20% यहाँ की महिला है जो वो कर रही है। अगर नहीं करती है तो प्लीज कीजिए। कभी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो हम सबके लिए भारी पड़ सकता है। उसी तरह से जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, वहाँ आने के बाद मैनेजमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट के खतरे को अंदाज में रखते हुए अलग अलग पीपी साधनों का
वहाँ पे उपयोग में लाने के लिए प्रोवाइड दिए हुए हैं। मैनेजमेंट ने अपना काम कर दिया है पीपीई किट देने का, पर यूज करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा तो नुकसान होगा ही, साथ में कंपनी का भी होगा और हमारे परिवार का भी होगा। और दूसरी बात, अगर कंपनी में आप सभी के कंपनी में फायर फाइटिंग फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, उसे हमें अच्छे से सीखना है। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर कभी कंपनी में हुटर बजता है तो वो सिग्नल है कि कंपनी में कोई आपातकालीन परिस्थिति आ चुकी है। उस वक्त हमें जल्द से जल्द कंपनी को इवैक्यूट करना है, खाली करना है और एक सुरक्षित स्थल पर जमा होना है, जिसे हम असेंबली पॉइंट कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे मॉक ड्रिल कहा जाता है। हर एक कंपनी में मॉक ड्रिल का प्रैक्टिस लिया जाता है। आप में से कितने जन ने किया है? वेरी गुड। तो आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उसे हमें डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करना है। अपने आप को बचाना है, हमारे साथ में जो काम करते हैं उनको बचाना है और कंपनी की जोखिम को भी बचाना है। तो क्या आप सभी लोग सुरक्षा का पालन करते हैं? आप करते हैं। इसके लिए कोविड के बाद आज भी आप लोग जिंदा हैं। जिन्होंने कोविड में नियमों का पालन नहीं किया उनमें से बहुत चले आप लोग हैं, मतलब आप उसका पालन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे और आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जाते जाते एक लाइन बोलूंगा, अगर वो आपको पसंद आई तो आप लोग तालियां बजाएंगे और उसके पहले हम लोग एक सुरक्षा की शपथ लेंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्टैंड। एक जगह पे आपको सबको खड़ा है, सिर्फ 1 मिनट के माझा आवाज लास्ट पर्यंत येतोय? सर्व ताईंना माझा आवाज पोहोचतोय? हम शपथ लेते हैं जब भी कोई कार्य करेंगे सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए उस कार्य को पूर्ण करेंगे। सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय सुरक्षा। थैंक यू। मैडम चंदा जी आप भी नहीं खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रणाम, उनका सम्मान हो रहा है। मैं सबसे पहले बुलाती हूँ हमारे असिस्टेंट कमिश्नर श्री माया जी। I'm sure आप लोग सब चाह रहे, we can just, क्योंकि बहुत लोगों का कुछ मीनिंग है। नहीं, हाँ, एक ऑफिस का